اور یہ وہ بڑا ایک فیصلہ ہوگا عمران خان کا جو آگے جا کے آپ کو ایک اور بتاؤں بات، عمران خان کی خاموشی اس کی آواز ہے. اب دیکھیں جو انسان تائب ہو کے کسی بھی بات سے دوبارہ اس طرف نہیں جاتا پھر اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ دیتا ہے. جوپیٹر کی جو پوزیشن ہے وہ قدرے فاسٹ موونگ ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کو فیصلے ہوتے ہوئے ان قریب کو خان صاحب بڑا فیصلہ لیتے نظر آ رہے ہیں، ادر پارٹیز کے لوگ خان صاحب سے مل کے خان صاحب کے ساتھ آنا چاہیں گے؟ بالکل، یہ بڑا اچھا کوسچن ہے. اچھا، خان صاحب نے بات کی تھی کہ جی فرشتے کہاں سے لے کے آؤ گا، خان صاحب اب مردم شناس ہو گئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدیر. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد علی صاحب، اسٹرالوجر ہیں، ٹیرو کارڈ ریڈر ہیں، روحانی علم بھی رکھتے ہیں اور لائف کوچ بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب سے آج ڈسکس کرنا ہے جی عمران خان صاحب کا ذائچہ اور ذائچے میں خان صاحب کے فیصلوں کے حساب سے بات کریں گے، اور بات کریں گے جی عدلیہ کی کہ کیا عدلیہ سے خان صاحب کو کس طرح کے ریلیف ملتا نظر آ رہا ہے. ڈاکٹر صاحب سے ہی بات کرتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ اللہ کا شکر، آپ ٹھیک ہیں جناب؟ الحمدللہ سر. اچھا، آپ خان صاحب کے ذائچے میں اگر بات کریں تو خان صاحب ابھی جیل میں ہی ہیں، مگر خان صاحب کی جو باتیں ہیں جو اس طرح ہیں وہ اس طرح سے باہر نہیں آ رہی. خان صاحب کسی ایک بندے کو اس طرح کا ذمہ دار بنائیں گے کہ خان صاحب کی جو پیغامات ہیں باہر آئیں اور وہ تحریک کو آگے لے کر چلیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. عمران خان جو ہیں ان کی باتیں آ جاتی ہیں باہر کسی نہ کسی طریقے سے. ہاں وہ کمپلیٹ نہیں آتی ہیں ظاہر ہے، مگر اب سے آنورڈز کچھ عرصہ اس طرح کا آپ دیکھیں گے کہ عمران خان کی چیزیں جو ہیں، باتیں جو ہیں وہ آتی جائیں گی باہر. آپ کو ایک اور بتاؤں بات، عمران خان کی خاموشی اس کی آواز ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ عمران خان کی طرف سے کوئی میسج نہیں آ رہا، بالکل ٹھیک ہے، وہ آواز ہے اصل. ٹھیک ہے. لوگوں کو سمجھ آتی ہے کہ آواز باہر نہیں آنے دی جا رہی، وہ پھر آواز ہو جاتی ہے. پبلک جو ہے وہ اس چیز کو بھی دیکھتی ہے کہ یار اس بندے کو نہ دکھایا گیا، نہ بتایا گیا، نہ سنوایا گیا. یہی چیز تو جو ہے وہ عمران خان کے لیے ووٹ بینک بڑھا رہی ہے. اپوننٹس کو سمجھ نہیں آ رہی. وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کام کرواتا ہے اس طرح کے پلان، اس کے پلان میں ہوتے ہیں، یہ آلریڈی لکھا گیا ہوتا ہے کہ کس کا معاملہ کیسے ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں جو انسان تائب ہو کے کسی بھی بات سے دوبارہ اس طرف نہیں جاتا پھر اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ دیتا ہے. یہ تو ایک لکھی پڑی بات ہے نا، بالکل اس میں تو کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی. یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ جب انسان سچے دل سے کسی بھی چیز سے ہٹ جاتا ہے اللہ سے کہہ کے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے اندر اس کی ہیلپ اور سپورٹ بھی کرتا ہے جب وہ دوبارہ اپنی انٹینشن یا اپنا انٹینٹ ظاہر نہیں کرتا ادھر آنے کے. ٹھیک ہے. اچھا سر، بظاہر خان صاحب کی ملاقات بھی ہو گئی، کیسز سے ریلیف بھی مل گیا تھوڑا سا. ابھی تو خیر بہت کیسز رہتے ہیں ان کے، مگر عدلیہ آپ اسٹرانگ ہوگی. اچھا، عدلیہ کے حوالے سے بات کریں تو عدلیہ کے حوالے سے خان صاحب کو ریلیف ملا ہے. آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آگے بھی عمران خان کو عدلیہ کی طرف سے کچھ زیادہ ریلیف مل رہا ہے؟ اچھا، ابھی آپ یہ دیکھیے گا کہ عدلیہ سے ریلیٹڈ کچھ ڈیسیژنز ایسے ہیں کہ جو اپیرنٹلی لگ رہے ہیں کہ وہ کسی کے خلاف جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. بٹ اگین ذائچے کا جو قانون ہے وہ اور طرف انڈیکیشن دیتا ہے. عدلیہ سے ریلیٹڈ جو پلانٹ ہے جوپیٹر وہ اچھی پوزیشن میں ہے، تو عین ممکن ہے کہ کچھ فیصلے جو ہیں وہ ری تھنک کیے جائیں، ریویو کیے جائیں، کیونکہ ابھی سسٹم جو ہے عدلیہ اوور آل دنیا کے اندر، کیونکہ یہ پلانٹ جو جوپیٹر ہے یہ صرف پاکستان کے لیے تو نہیں ہے، یہ پوری دنیا کو بیان کر رہا ہے عدلیہ، خیر و برکت، وہ سب. تو بہت ساری چیزیں جو ہیں جو عدل و انصاف سے ریلیٹڈ ہیں وہ آپ کو ریورس ہوتی نظر آئیں گی. ٹھیک ہے سر. عدلیہ اور کیونکہ میں سوری آپ کی بات انٹرپٹ کر رہا ہوں، یہ جو پلانٹ ہے نا جوپیٹر، یہ فارورڈ بھی جائے گا، یہ ریورس بھی آئے گا، یہ فارورڈ بھی جائے گا، ریورس بھی آئے گا. اس بار جوپیٹر کی جو پوزیشن ہے وہ قدرے فاسٹ موونگ ہے، تو آپ کو فیصلے ہوتے ہوئے اور فیصلے ریورس ہوتے ہوئے وہ نظر آئیں گے. اچھا، عدلیہ اور عوام دونوں کو دیکھیں تو دونوں میں سے کون سے پلانٹری کنڈیشن اسٹرانگ ہے جس کے طرف سے زیادہ حرکت میں آئیں گے؟ جو زحل ہے نا جی، ہاں جی، وہ زحل عوام سے ریلیٹ کرتا ہے، یہ بہت اسٹرانگ پوزیشن کے اندر بیٹھا ہوا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک کوارڈینیشن جو ہے وہ بنتی نظر آتی ہے. آلدو جو عدلیہ والا پلانٹ ہے اس کو ایک اسکوائر بھی بنتی ہے
स्क्वायर बनती है इसकी ज़ोहल की, यानी अगर हम इमरान खान का जायचा देखते हैं, एरीज 7वां घर है ठीक और है 10वां घर जो है वो कैप्रिकॉन है। ठीक है तो अब चूंकि एग्जॉल्टेशन के घर में बैठा हुआ ना अपना जुपिटर, इसलिए अगर इसको ये स्क्वायर भी देगा ना, तो ये अपने दुश्मन के घर में बैठा हुआ है ज़ोहल। ठीक है ठीक है, तो इसकी स्क्वायर को इतनी ज़्यादा असरअंदाज जो है वो उसके ऊपर होती नज़र नहीं आती। या आप ये देखें कि अवाम जो है वो को बहुत ज़्यादा आप कह लें कि डाउन होती हुई नज़र नहीं आती, अपने मसाइल में ज़रूर हैं, ठीक मगर है ये है कि अदराक है अवाम को कि क्या चल रहा है इस वक्त। ठीक। अनकरीब को खान साहब बड़ा फैसला लेते नजर आ रहे हैं किसी पार्टी के हवाले से या बड़ा फैसला ये है कि महमूद खान अचकज़ई को इमरान खान ने कहा ना, ठीक है तो ये है कि उसके अंदर थोड़ा सा भी रिफ्ट जो है वो चलेगा, मगर अचकज़ई साहब जो है ना वो एक पोजीशन लेते हुए नजर आएंगे इमरान खान साहब के साथ, और ठीक है ये वो बड़ा एक फैसला होगा इमरान खान का जो आगे जाके जो है इनको कहीं ना कहीं बेनिफिट देता हुआ नजर आएगा। अच्छा, यानी कि यहाँ से खान साहब की आसानियाँ शुरू हो रही हैं और फैसला लेना इनके लिए काफ़ी बेहतर होगा। आसानियाँ इमरान खान साहब के लिए आप पॉलिटिकल आप कह लें, ठीक बिल्कुल है सही है। ठीक है। अच्छा सर, खान साहब की फैमिली पर दबाव, यानी कि बच्चों के भांजों के हवाले से, तो वो भांजों की कोई आज़ादी या उनका कुछ ज़्यादा मेरे लंबा पास उनके केस है? जायचे नहीं है, डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है, इसलिए मैं उसके बारे में कोई बात नहीं कर सकता। मैंने तो इमरान खान का जायचा खोला हुआ है। ठीक है तो ये है कि हमने ओवरऑल देखना है कि इमरान खान का जायचा अगर बेहतरी की तरफ जा रहा है तो ये सारी जो एसोसिएटेड या रिलेटेड चीज़ें हैं इनका असर वो कबूल नहीं कर रहे, ठीक है और अल्टीमेटली ये चीज़ें जाके कहीं ना कहीं अदलिया के प्लेनेट ठीक की है हमने बात की है ना, वो ठीक एक है डिसीजन है, ठीक वो है रिवर्स भी हो सकता है। ठीक है ये सिंपल, अगर हम इसको पाकिस्तान के हवाले से देखते हैं ना, पाकिस्तान के चार्ट में, तो पाकिस्तान के चार्ट में भी आप ये देख लें, 9वें घर के अंदर एरीज के अंदर जो है वो बैठा हुआ है सैटर्न, ठीक है और पाकिस्तान के 12वें घर के अंदर बैठा हुआ है जुपिटर ठीक है जो ट्रांजिट का है। तो फैसले जो हैं वो अदलिया जो है वो और ज़्यादा बेहतर लेती नजर आएगी। कुछ नई आवाज़ें जो हैं अदलिया के अंदर से वो अपनी जो क्या कहते हैं डिसीजन पावर है उसको रजिस्टर करवाते हुए वो भी नजर आएंगे। ठीक है, यानी कि अदलिया की तरफ से बड़े फैसले आने वाले हैं। अच्छा सर, आस्तीन के सांपों की बात करें तो कुछ तो झड़ गए आस्तीन से, और जो आस्तीन में है उनका क्या मुस्तकबिल है? वो झड़ने वाले, ठीक है वो निकल जाएंगे इस तरह से कि वो कहते हैं कि इस तरह के लोग जो होते हैं ना वो अपनी मौत आप मर जाते हैं, और बहुत ठीक सारे है लोगों को आपने देखा पीटीआई में कैसे कैसे बेनिफिट्स लिए उन्होंने, आज वो किधर है। ठीक है, बिल्कुल अभी भी आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे चेहरे पीटीआई से आपको डिमिनिश होते हुए नजर आएंगे अपनी गलतियों की वजह से। अच्छा, खान साहब ने बात की थी कि जी फरिश्ते कहाँ से लेके आओ, क्या खान साहब अब मरदम शनास हो गए हैं? अब इनमें से कुछ ऐसे होंगे कि जिनको खान साहब कहें कि यार ठीक है तेरे से गलतियां हो गई, तुझे माफ़ करता हूँ, आ जा वापस? कुछ लोग होंगे गिनती के, और ज़्यादातर लोग जो हैं वो मफाद परस्त अगर हैं। 5वां घर इमरान खान के जायचे का देखते हैं ना, जब हम बात करते हैं दोस्तों का, बैतुल अक़रबा, तो ये मफाद परस्त लोग हैं इमरान खान के इर्द गिर्द। अब इमरान खान को ज़रूरत नहीं है, दुनिया जो है उनको पकड़ पकड़ के साइड पे करती जाएगी, देखिएगा। आपको लगता है कि अब खान साहब जब आ जाएं बाहर, अपनी पार्टी को दोबारा रिफेक्ट करें, सारा कुछ दोबारा वो हो, तो अदर पार्टीज़ के लोग खान साहब से मिल के खान साहब के साथ आना चाहेंगे? बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, इमरान खान के साथ बहुत सारी पार्टीज़ जो हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ कोऑर्डिनेट करने के लिए रेडी भी हैं, और वो होंगे, होता ठीक है हुआ नज़र आएगा। ठीक है, पूरी बस वो खान साहब के बाहर आने का इंतज़ार कर रहे हैं। इंतज़ार कर रहे हैं, या मुमकिन है कि आप ये देखें कि पार्टीज़ जो हैं वो बात करना शुरू कर दें कि जी इसको ठीक बाहर निकालो, और क्योंकि पार्टीज़ बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो आपको आने वाले डेज़ में जायचे के हिसाब से इमरान खान के साथ जो है वो जुड़ती हुई नज़र आ सकती है। है सर, खान साहब के जायचे में अगर बात करें कि इंटरनेशनल होराइज़न से कोई आवाज़ आ रही है, जमाइमा का ट्वीट भी आया, आपको लग रहा है कि वहाँ से कोई आसानी आएंगी ट्रंप कोई की तरफ से, या अगर यूके वाली साइड से इस तरफ से कुछ नहीं, है? ट्रंप की तरफ से तो नहीं है, आपको तवक्को रखें। ये तो
ट्रम्प ने जब आना था एज ए प्रेसिडेंट, उस वक्त कैलकुलेशन रीडिंग हमने दी थी कि वो आ सकता है, आ गया वो, अल्लाह ताला लाया उसको, हम हमारे कहने से थोड़ी आया। मगर ये कि ट्रम्प की तरफ से कोई फेवर की आप उम्मीद ना रखें। हाँ, कहा जा रहा है जी वो मार्को रूबियो आ रहा है और उसने ये कह देना और वो कह देना। हम जायचे की बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, इमरान खान का 9th हाउस जो है वो अच्छा है, कम्युनिकेशन का हाउस ना, मरकरी है उसका लॉर्ड, जमुनाई है इनका नवा घर। तो इंटरनेशनल लेवल पे तो बात होती है और होती रहेगी, क्योंकि इमरान खान जो है ही इंटरनेशनल कैडर के। इंटरनेशनल में तो उनके बच्चे भी आते हैं, वो हाँ भी बाहर हाँ, ही वो हैं, भी वो हो भी रही बात है। कर रहे हैं। उनकी जो एक्स वाइफ है, हाँ जी, उन्होंने भी ट्वीट किया है। इसके अलावा आप ये देखिए, उनकी बहन का भी एक इंटरव्यू जो है वो हुआ है, जिसको मेरा ख्याल है एक वक्त में लाखों लोगों ने देखा है। बिल्कुल। तो ये है कि इमरान खान के लिए इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बातें हो रही हैं, और किसी भी टाइम पे आप ये देखिएगा कि इमरान खान के जो राइवल्स हैं ना, वो उस इंटरनेशनल प्रेशर को भी देख रहे हैं। ये जो चीज़ें हो रही हैं ना, ये जो किताबें चली गई और बहनों को मिलने दिया, वकील मिल लिए, ये उसी जो है ना इंटरनेशनल प्रेशर का वो हिस्सा है, आता है। देखें, इमरान खान के राइवल्स भी तो इंसान ही है ना, बिल्कुल। तो प्रेशर तो आता है। प्रेशर कितने परसेंट है जो ये अफोर्ड कर सकते हैं? इतना है कि हुकूमत को उसमें बर्दाश्त कर लेगी अगर इतना प्रेशर आता है तो? नहीं, थोड़ा सा वो देखें ना, आप ईज आउट करते हैं अपने आप को। इमरान खान को रिलीफ नहीं दे रहे होते, वो इमरान खान को नहीं ईज आउट कर रहे होते, ठीक वो है, अपने आप को ईज आउट कर रहे होते हैं, अपने आप को आसानी दे रहे होते हैं। वो ठीक है, प्रेशर जो है वो रिलीज अपना कर रहे होते हैं, इमरान खान का नहीं होता बेसिकली। ठीक है। इमरान खान तो पता नहीं, मैंने वीडियो देख रहे थे क्या, कि जी किसी ने कहा कि जी वो इतने दिन ऐसे रहा, उसके बाद फिर शेव की, या फिर उसने नॉर्मल तरीके से, उसे कोई गिला ही नहीं किया। तो इमरान खान को पता है, उनका जो है ना वजदान, वो कहता है उनको कि यार आप जो है ना ये मामला और तरफ जाएंगे। खान साहब बाहर आके इंतकामी सियासत करते नजर आ रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता जायचे से, अब करें तो वो फिर अल्लाह जाने और वो जाने। जायचा जो है वो तो नहीं बताता, ठीक है, क्योंकि इमरान खान साहब हैं लिब्रा, ठीक है, और कई लोग उनको सेंचुरी से भी पढ़ते हैं, उससे असेंडेंट से भी। तो ये है कि दोनों तरफ से अगर हम देखते हैं ना, तो लिब्रा वाले लोग हवा एयर साइन है, ये और टाइप के लोग होते हैं। इंतकामी सियासत होगी मगर वो सिर्फ पीटीआई वालों के लिए होगी जो आस्तीन के सांप है। नहीं, उनकी से कुदरत इंतकाम खुद ले रही है। जो इमरान खान की पार्टी में इमरान खान की पार्टी या इमरान खान के खिलाफ है, ठीक है, इमरान खान को इंतकाम लेने की क्या ज़रूरत है? ठीक है, यानी कि अपनी पार्टी को रिफैप करके फिर वो उन चीज़ों को निकालेंगे और ठीक करेंगे, ऐसे नहीं, होगा। कुदरत निकाल रही है उन चीज़ों को। ठीक है, इमरान खान ने बाहर आके थोड़ा सा रेस्ट लेना, ठीक है, ठीक है, वो रेस्ट हो सकता है इस शक्ल में भी कि कहीं बैठ जाएं आराम से, किसी और को पार्टी की क़यादत दे दें, क्योंकि उनका जहन फुल चल रहा है, चला हुआ है इस वक्त। और दूसरा ये है कि रेस्ट लेके अब वो नए तरीके से अपनी पार्टी को चला, मतलब वो बना के उसके बाद फिर वो चला सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे। खान साहब का जायचा डिस्कस हुआ और पीटीआई का भी जायचा डिस्कस हुआ, और उसके अलावा पीटीआई का नई शक्ल जब सामने आएगी तो वो सबको पता लगेगा। खान साहब बाहर आकर किस तरह की सियासत करेंगे, डॉक्टर साहब ने वो भी बताया कि जायचा क्या कुछ बता रहा है। डॉक्टर साहब का नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है, अगर आप पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं तो रब्ता कर सकते हैं। मुझे और डॉक्टर साहब को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया सर। सलाम पाकिस्तान।